A very good day to all. I am Samiranjan Nayak, Assistant Professor in Mechanical Engineering at Vedant Institute of Technology. As we already discussed about the transmission system, the manual transmission containing of the single plate clutch, multi-plate clutch, cone clutch, and hydraulic clutch. The automatic transmission system consists of centrifugal clutches. We already discussed. Just go through my videos, just learn through it. Now today we are going to discuss about the last part of the clutch system. It is electromagnetic clutch. It is a semi-automatic clutch system. Okay. Why it is known as semi-automatic clutch system? First we have to understand is what do you mean semi-automatic? Semi-automatic means it is not fully automatic or it is not fully manual. It's just between them. It is semi-automatic system. You can able to operate the clutch by means of automatically by means of electrical input or by means of any linkage of arrangement, but it will engage or disengage by means of mechanically. That means electrically we can able to control the clutch, but it will work as mechanically. For that purposes, electrical automatic, mechanical manually. That's why it is known as semi-automatic system, not complete manual, not complete automatic. It is known as semi-automatic clutch system. The name suggested electromagnetic clutch. Electromagnetic clutch means as electro and magnetic. That means electrical field and magnetical field both are come into contact in this type of clutch system. It is completely purely electrical and also mechanical, consisting in the both sides. So first of all, what happens? Electrical field generated, then that electrical field generate the magnetical field. Means the magnetical field get birth by means of electrical field. पहले electrical field develop होगा, के बाद क्या होगा ना, उस electrical field automatically magnetic field को generate करेगा. So this is an armature or driven shaft and an electromagnetic or a driver shaft. पहले उसका parts देखना जरूरी है. What are the different parts in the electromagnetic? Then we'll discuss about we'll go for the definition or different type of parts function. Here in a electromagnetic clutch, first part here is armature. Armature, the main part is the armature is connected to driven shaft. Driven shaft means ये करता क्या है ना, हम अभी तक पढ़ के आए हैं कि ड्राइविंग शाफ्ट मतलब एक ड्राइव शाफ्ट है जिसको ड्राइविंग शाफ्ट कहते हैं, जो इंजन से कनेक्टेड है, कोई और एक ड्रिवन शाफ्ट है जो गियर बॉक्स में कनेक्टेड है. तो पावर आता है इंजन से ड्राइविंग शाफ्ट को और जाता है गियर बॉक्स बाय मींस ऑफ ड्रिवन शाफ्ट. आर्मेचर ड्रिवन शाफ्ट में कनेक्टेड है. आर्मेचर क्या करता है ना, पावर को गियर बॉक्स को ट्रांसमिट करता है. तो इसका मतलब ये है कि आर्मेचर एंगेज और डिसएंगेज आर्मेचर ही होता है. Whereas रोटर एंड पुली, इसको रोटर बोलो या पुली बोलो, एक ही चीज है. okay? In rotor and pulley format, that means it will always rotated by taking the power of the engine, by taking the power of the driving shaft. Okay, the engine shaft, that is driving shaft connected to the rotor, it is always get rotated when there is a switch on, electricity passes through it. Then by means of bearing, we all know that bearing is used for the reduce the friction. Next is field coil. Field coil play a very important role over here electromagnetic clutch system. Field coil rotate with by means of rotor. Field coil will be rotated by means of rotor. As we know, there is a concept that when there is a electrical field is rotated, and when an electrical current it passes through a coil and that coil is rotated, at that time the magnetical field is going to generate. That is very much important fundamental things over here. The most important part of this is field coil. In this field coil, what happened? When it is rotated, at that time the electrical field is generated. The electrical field generated, that electrical field through the means of stator, it will produce the means of magnetical field. The magnetical field automatically generated with the help of the formation of or development of the electrical field. Next, here this is a diagram. But before that, we are going to discuss about another thing. This electromagnetic clutch, that is, this is an armature on driven shaft. Armature on the driven shaft, जो मैं बोल चुका हूँ. The armature should be in the driven shaft, मतलब output shaft. Driven shaft is otherwise known as output shaft, and driving shaft otherwise known as the input shaft. Input shaft just absorb the energy or from the engine
and output shaft जो release the energy according to our requirement to the rear wheel of the axis and an electromagnet on the driver shaft. आर्मेचर ड्रिवन शाफ्ट में है और इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या है, जो वो रोटर है उसके बाद जो फील्ड कॉइल है, इस दोनों का अरेंजमेंट ड्राइवर शाफ्ट में कनेक्टेड है, मतलब वो एनर्जी इंजन से लाएंगे, जो टॉर्क एनर्जी पावर इंजन से लाएंगे. Current is supplied accordingly to the electromagnetic when the clutch pedal pushed or actuated. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैनुअल क्लच पेडल जो होता है वो 2-3 टाइप का यहाँ पे होता है. पहले चीज ये है कि क्लच को तुम ऑन और ऑफ कर सकते हो डायरेक्टली. इससे अरेंजमेंट होता है कि तुम इलेक्ट्रिकल सिस्टम के हिसाब से क्लच को ऑन करो कि क्लच को ऑफ करो. ओके. पॉइंट नंबर 2, अनदर सिस्टम होता है कि वो गियर में कनेक्टेड होता है. फॉर एग्जाम्पल गियर में अगर तुम न्यूट्रल डाल दोगे तो न्यूट्रल अगर डाल दिए गियर में तो ऑटोमेटिकली क्लच ऑफ हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पासेस नहीं करता. और अगर तुम गियर डालते हो तो ऑटोमेटिकली क्लच ऑन हो जाता है. तो ये जो सिस्टम है, 2 टाइप ऑफ सिस्टम इसमें ही लागू किया जाता है अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द इन ऑटोमोबाइल और एनी अदर पर्पजेस. नेक्स्ट इज as the current is supplied, the electromagnet produces a magnetical field that attracts the armature. ये मैं बोल चुका हूँ. इसका मतलब है कि एक बार करंट फ्लो करता है तो उसके बाद क्या होता है ना, when the current is flow at that time the electrical field is generated by means of rotor and that electrical field going to give the birth to the magnetical field. इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होता है, जब रोटर घूमता है तो फील्ड कॉइल घूमता है, तो इसी हिसाब से मैग्नेटिकल फील्ड का जन्म होता है, मैग्नेटिकल फील्ड ऑटोमेटिकली डेवलप होता है. ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कॉन्सेप्ट. अगर एक कॉइल है उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है और वो कॉइल घूम रहा है, रोटेटिंग मूवमेंट में, तो ऑटोमेटिकली वो तुम्हें मैग्नेटिकल फील्ड देगा. राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ये काम करता है. नेक्स्ट इज दिस जनरेट ए फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन बोथ द फ्रिक्शन प्लेट व्हेन दे कम टुगेदर. जब आर्मेचर को मैग्नेटिकल फील्ड डेवलप होने के बाद अट्रैक्ट कर लेता है, अपने तरफ खींच के एंगेज कर लेता है, तब गियर एंगेज हो जाता है और पावर फ्लो करता है, टॉर्क फ्लो करता है. जब तुम क्लच ऑफ कर देते हो तब क्या होता है ना, मैग्नेटिकल फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब स्विच ऑन कर देते हो, इलेक्ट्रिक फ्लो कट ऑफ कर देते हो, तो उसके टाइम पे क्या होता है ना, क्लच में जो आर्मेचर होता है वो अलग हो जाता है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होता, मैग्नेटिकल फील्ड नहीं होता, डेवलप नहीं होता, करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कट ऑफ किया गया है, तो आर्मेचर अलग हो जाता है. उसको डिसएंगेजमेंट ऑफ क्लच कहते हैं. वहां पे टॉर्क फ्लो नहीं करता. दिस जस्ट ओनली द फंक्शन ऑफ इट. विद इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम द लोड इज एक्सेलरेटेड टू द मैच द स्पीड ड्रिवन शाफ्ट. उसके बाद क्या होता है, after that the connected, after that when the armature is just connected with that means of flywheel or by means of rotor arrangement or get attracted by the magnetical field, then it will reaches that speed of rotation at the same speed of rotor and the armature field coil is rotating. Okay, but whenever the clutch has to be disengaged, electric supply is stopped and the spring retired back to position of armature. We already know that spring is there in each and every clutch to bring back into the original position. Over here also the spring is there. What happened when you want to disengage the clutch, at that time just cut off the electrical supply from the clutch system. Okay. So next is, there is the diagram. So first armature, then rotor pulley. ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ. आर्मेचर का फंक्शन क्या है, रोटर पुली का फंक्शन क्या है, बियरिंग फ्रिक्शन लेस के लिए यूज किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फील्ड कॉइल है. तो यहाँ पे इसका अरेंजमेंट है. आर्मेचर ये जो शाफ्ट है वो ड्रिवन शाफ्ट है, आउटपुट शाफ्ट यहाँ पे है. तो इसका मतलब ये है कि अब फ्लो ऑफ द इंजन पावर यहाँ से आएगा. फील्ड कॉइल यहाँ पे कनेक्टेड है, मतलब ये जो फील्ड कॉइल है यहाँ पे है, ये एक फील्ड कॉइल है और ये एक फील्ड कॉइल, दोनों फील्ड कॉइल है, ये वाला और नीचे वाला दोनों फील्ड कॉइल है. उसके बाद आर्मेचर यहाँ पे है, तो इसका मतलब आर्मेचर जो है वो यहाँ पे है. ये जो प्लेट, ये जो पिंक कलर प्लेट है वो अलग है, वो मूवमेंट करेगा, और जो येलो टाइप है वो ये एक अलग प्लेट है. तो नेक्स्ट पार्ट इज दैट आर्मेचर के बाद रोटर आता है. ये जो रोटर पुली है वो रोटर पुली घूमता है, तो यहाँ पे रोटर पुली है जो घूमता है, ये कंटिन्यूसली घूमेगा पावर इंजन से लेके ड्राइविंग शाफ्ट से लेके. नेक्स्ट बियरिंग है और स्टार्टर है. स्टार्टर यहाँ पे दिखाई नहीं दिया है. स्टार्टर यहाँ पे आर्मेचर के पास होता है. आर्मेचर के पास जो रोटर है तो रोटर के पास का स्टार्टर होता है. नेक्स्ट इज
हब, हब मतलब क्या है, जो कनेक्टेड करके रखता है शाफ्ट के साथ, जो घूमता है शाफ्ट के साथ, जो घूमता है उसको फिक्स करके रखता है अरेंजमेंट डिजाइन कॉन्सेप्ट के हिसाब से, हब उसे कहते हैं। उसके बाद क्या है, ये कंप्लीटली अरेंजमेंट है, डिजाइन, ये ड्राइविंग शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट, ड्रिवन शाफ्ट, आर्मेचर यहाँ पे लगा गया है, रोटर यहाँ पे है, फील्ड कॉइल दोनों यहाँ दोनों पे है, ये हब है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये काम कैसे करता है? काम ये करता है कि अगर इंजन यहाँ पे है और फ्लो ऑफ द टॉर्क इस तरह आ रहा है, तो ड्रिवन शाफ्ट में आएगा, तो ड्रिवन शाफ्ट घूम रहा है, तो पहले कौन घूमेगा? पहले घूमेगा रोटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रोटर विल मूव। When rotor will move by means of bearing, it connected with the field coil. The field coil will be moved. When the rotor moves, the field coil will be moved. First of all, the rotor will move. When the rotor will move, the field coil automatically move. Okay, when the field coil move at a certain period of time, the field coil, first of all, it will generate electrical field when you give the electrical supply to it. But after the rotation of the rotor, at that time what happened? The electrical field converted into magnetical field. It just give a birth to a new field, magnetical field, because as means of the electrical law, when a coil rotating and carrying current, it will produce the magnetical field. So according to that law and concept, the field coil first generated electrical field when you give the current. But when the rotor will rotate by means of the driving shaft, by means of engine, torque is transmitted, at that time what happened? That electrical field converted into magnetical field. When the magnetical field is generated, at that time what happened? It just attract the armature towards it. When the armature just attract towards the magnetical field, at that time it just engage. When it will be engaged, the power is just flow through the driven shaft to the rear axle to the gearbox. It will happen automatically by means of electrical and magnetical system. And if you operated by means of electrically or by means of manually, that means it is a semi-automatic system. That's why the electromagnetic clutch, otherwise known as electromechanical clutch, it's mechanically and the electrically both work over here. That's why it is known as electromechanical clutch. Otherwise, the electromagnetic clutch, otherwise known as electromechanical clutch. Next, it is the engagement. When there is a disengagement, when you cut off the supply. When you cut off the supply, at that time what happened? The rotor will rotate at that time. The rotor will never stop. So the rotor will stop when the engine will stop. When the engine will stop, at that time the rotor will stop. Rotor have only one function, it will only rotate. Why it will rotate? Because it fixed with field coil to be rotate. But when you cut off the electrical supply, there is no electrical field will be generated in the field coil. If there is no electrical field, whatever the rotation, it does not depend upon the rotation, because no electrical field means no magnetical field will be generated. This is just confusion that एक बार फिर से कह देता हूं कि जब पहले तुम क्लच को ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तब फील्ड कॉइल में इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होता है। लेकिन रोटर हमेशा घूमता है, क्योंकि रोटर डिपेंड करता है इंजन के ऊपर। इंजन घूम रहा है तो रोटर घूमेगा, इंजन नहीं घूम रहा है तो रोटर नहीं घूमेगा। रोटर का काम इतना ही है। तो इंजन घूम रहा है तो रोटर भी घूमेगा, लेकिन तुम क्लच को अब क्या किए, ऑफ कर दिए हो, ऑफ कर दिए सपोज, सॉरी पहली चीज ऑन कर दिए। अगर क्लच को तुम ऑन कर दिए तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है फील्ड कॉइल में, तो फील्ड कॉइल में फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड जब पहले डेवलप हो जाता है तब रोटर तो घूम रहा है, तो रोटर जब घूमेगा तो फील्ड कॉइल भी घूम रहा है और उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है, तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड अपने आप मैग्नेटिकल फील्ड को पैदा करता है, मैग्नेटिकल फील्ड को डेवलप करता है। वही मैग्नेटिकल फील्ड आर्मेचर को अट्रैक्ट करके वो एंगेजमेंट करता है और फ्लो ऑफ द टॉर्क ट्रांसप्लेस होता है फ्रॉम द ड्रिवन शाफ्ट। सिमिलरली अगर तुम इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद कर देते हो, कट ऑफ कर देते हो, एट दैट टाइम क्या होता है, एट दैट टाइम क्या होता है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट नहीं होता, तुम करंट नहीं दिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये जो फील्ड कॉइल है इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता। लेकिन रोटर घूमता है, क्योंकि वो इंजन घूम रहा है तो रोटर घूमेगा, इंजन तो बंद नहीं है। लेकिन घूमने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फील्ड करंट बंद है। फील्ड करंट बंद है तो फील्ड कॉइल में कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, तो मैग्नेटिकल फील्ड डेवलप करेगा ही नहीं, और ये जो आर्मेचर
आर्मेचर है, ये जो आर्मेचर हब है, आर्मेचर है, वो इसमें दूरी बना के रखेगा, यहाँ पे गैप रहेगा, ये आके यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये डिसएंगेजमेंट पोजीशन है जहाँ पे पावर या टॉर्क ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जो वर्किंग प्रिंसिपल है जिस हिसाब से ये काम करता है। आज फॉर ये इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिकली बोथ फील्ड डेवलप करता है और ऑटोमेटिकली ये चीज काम करता है, लेकिन ऑपरेटेड बाय मैनुअली, इसलिए उसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्लॉच कहते हैं या इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल क्लॉच बोला जाता है और सेमी ऑटोमेटिक क्लॉच भी बोला जाता है। तीन चीज इसका नाम है। फाइनली this is just another diagram over here. This is just pressure plate and the clutch plate. Flywheel, this is winding or field coil. Same thing over here. If if you go for the winding coil, it will attract towards it, and if you winding coil get cut off, the flow is not takes place of coil, the disengagement position takes place. It's not the great, just simply diagram which I already discussed in the before. Next part is a simple video which can able to completely understood about the how it will work in animated video electromagnetic clutch. This is a conveyor blade. This one is the conveyor blade, mechanically connect or disconnect. Conveyor blade में क्या होता है ना, ये फ्लो कर रहा है, चीज जो फ्लो है वो फ्लो कर रहा है, क्लच ऑन है तो ये सब कुछ घूम रहा है। अब क्या होगा ना, क्लच ऑफ हो जाएगा। जब क्लच ऑफ होगा तो ये सब कुछ बंद हो गया, ये जो प्रोडक्ट है बाहर नहीं आया, कन्वेयर ब्लेड नहीं घूमा, लेकिन यहाँ पे देखो रोटर घूम रहा है। क्लच ऑन हुआ, क्लच ऑन हुआ तो ये देखो, अब क्लच ऑन होता है तो आर्मेचर करंट फ्लो करता है, क्लच ऑन हुआ तो फ्लो हुआ, ये चीज आगे आ रहा है। क्लच ऑफ हुआ तो ये घूम रहा है, लेकिन ये नहीं घूम रहा है। रोटर तो घूमता है, ये घूम रहा है, रोटर तो घूमेगा, लेकिन आर्मेचर करंट नहीं फ्लो नहीं कर रहा है। ये तुम्हारा सिस्टम है जो मैंने बताया था, कंप्लीट सिस्टम है। यहाँ पे स्टार्टर है, यहाँ पे रोटर है, आर्मेचर, वेब स्प्रिंग, ये स्प्रिंग सिस्टम है और पुली है। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है यहाँ पे देख लो। फुल सिस्टम, ये रोटर है तो घूमेगा। अब क्लच ऑफ है लेकिन ये घूम रहा है, ये तो घूमेगा, का काम है घूमने के लिए, इंजन से पावर लेके घूमता है, इंजन घूमेगा तो ये घूमेगा। तो क्लच ऑफ है लेकिन ये घूम रहा है। कॉयल है, ये फील्ड कॉयल है, ये फील्ड कॉयल है जो ऊपर और नीचे दोनों है। स्टार्टर है जो फील्ड कॉयल के साथ है, जो पहले बताया था, लेकिन यहाँ पे पूरा डिटेल्स में कहाँ पे लगा गया दिखाई दे रहा है। स्टार्टर फील्ड कॉयल के पास लगाया जा रहा है। जब मैग्नेटिकल फोर्स डेवलप होगा एट द टाइम, स्टार्टर यहीं पे आर्मेचर कॉइल को अपने तरफ खींचेगा, विल अट्रैक्ट बाय मींस ऑफ स्टार्टर। अब क्लच ऑन हो गया, आर्मेचर आगे मूव किया, अब ये एंगेजमेंट पोजीशन है। एंगेजमेंट पोजीशन, द आर्मेचर मूव फॉरवर्ड, क्लच इन ऑन पोजीशन, द पावर विल बी मूव, and here is the pulley. Pulley is the just supporting part of the armature. The power is just transmitted to the driven wheel, to the gearbox, through that the propeller start on the differential to the rear axle. This is known as clutch off condition. It is armature just away from it. Then clutch on condition, armature just connected to it. यहाँ पे देख लो, जो पहले वीडियो देखा था फास्ट से, क्लच ऑफ कंडीशन में है तो रोटर घूम रहा है, ऑन कंडीशन में है तो ये पूरा कन्वेयर बोल रहा है क्योंकि पावर ट्रांसमिट हो रहा है। ऑफ कंडीशन पावर ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, रोटर घूम रहा है और कुछ कन्वेयर भी रुक जा रहा है। ऑन कंडीशन में कन्वेयर चल रहा है, ऑफ कंडीशन में नहीं घूम रहा है। देखो ऑफ कंडीशन में रोटर घूम रहा है, आर्मेचर नहीं है, और ऑन कंडीशन में आर्मेचर कनेक्टेड होगा और वो रोटर घूमेगा। कंट्रोल द पावर ट्रांसमिटेड टू द ड्रिवन शाफ्ट। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑटोमेटिक क्लच जो आगे पढ़ाऊंगा उसके बाद, पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। तो इस वीडियो को फिर से देख लेना, आप आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लच ऑन पोजीशन में है और ये सब कुछ चल रहा है, रोटर घूम रहा है, आर्मेचर कनेक्टेड है, कन्वेयर बेल्ट में यूज किया गया है। ये कन्वेयर बेल्ट में जो कंपनी में यूज करते हैं वहाँ पे यूज किया गया है। क्लच ऑफ में है तो रोटर तो घूम रहा है, आर्मेचर कॉइल नहीं घूम रहा है क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है। ऑन पोजीशन में दोनों घूम रहे हैं।
तो कन्वेयर बेल्ट घूम रहा है। ऑफ कंडीशन में सिर्फ रोटर घूमेगा क्योंकि मोटर घूम रहा है, आर्मेचर कनेक्टेड नहीं है तो नहीं घूमेगा। इट इज द क्लच ऑन कंडीशन, इट इज द क्लच ऑफ कंडीशन। जस्ट लुक द डिफरेंस बिटवीन टू। Next is completely arrangement of the electromagnetic clock system, ट्रैक्टर, रोटर, आर्मेचर, स्प्रिंग्स, पुली। वेब स्प्रिंग का काम यही है कि वो आर्मेचर को आगे पीछे करेगा, मतलब आगे जाने के बाद फिर से जब अपने पोजीशन को जाएगा वो वेब स्प्रिंग के जरिए जाएगा। बिकॉज वी ऑलरेडी नो एवरी क्लच हैव इट्स ओन स्प्रिंग। व्हेन देयर इज हेलिकल स्प्रिंग, ओवर हियर देयर इज अ वेब स्प्रिंग। द स्प्रिंग always helpful for that means of transmitted to the return back to original position after get descent। ये क्लच ऑफ कंडीशन में है, रोटर घूम रहा है, कॉइल को पावर जाएगा, कॉइल में इलेक्ट्रिकल फील्ड फ्लो करेगा जब क्लच ऑन पोजीशन में होगा। स्टार्टर उसके बाद फील्ड करंट लेगा और फील्ड कर लेने के बाद स्टार्टर मैग्नेटिकल फील्ड जनरेट करेगा। मैग्नेटिकल फील्ड जनरेट, यहाँ पे मैग्नेटिकल फील्ड जनरेट हुआ, द ब्लू डॉटेड लाइन, मैग्नेटिकल फील्ड यहाँ पे जनरेट हुआ। उसके बाद वो आर्मेचर को अपने तरफ खींचेगा, जो अपने तरफ खींचा तो क्लच ऑन हो गया। तो क्लच ऑन हो गया तो मैग्नेटिकल फील्ड डेवलप हुआ, आर्मेचर कॉइल के बाद कनेक्टेड हो गया और पावर यहाँ पे फ्लो होगा। वेब स्प्रिंग वहाँ पे है, पुली यहाँ पे कनेक्टेड है जो कि सपोर्टिंग पार्ट है। अब यहाँ पे पावर फ्लो किया, कन्वेयर बेल्ट चलेगा और उसके ऊपर जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो काम करेगा, मतलब जिस हिसाब से यूज करना चाहिए वो काम करेगा। क्लच ऑफ कंडीशन में है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, तो नो मैग्नेटिकल फील्ड, नो आर्मेचर विल मूव फॉरवर्ड। क्लच ऑफ कंडीशन, no conveyor belt will move. On condition, conveyor belt will be moved. Just simple working principle of a electromagnetic clutch. And it is the most heartful and different from the other clutch is that it is work as electrical and mechanical. It is otherwise known as semi-automatic clutch system. Now we are going to study about advantage of electromagnetic clutch and disadvantage of electromagnetic clutch. Advantages of electromagnetic clutch is that torque can be controlled very precisely. Precisely means what? You can able to reduce the clutch torque, you can able to increase the torque according to your own necessity. In our other clutch system, what happened? We cannot vary the torque transmission according to our need, which means a very much number of variation. So precisely means very little difference between the torque transmission we can able to control over it. That's why it is not precisely transmission. For example, अगर हमें टॉर्क ट्रांसमिशन 10 न्यूटन मीटर से 12 न्यूटन मीटर, ओनली 2 न्यूटन मीटर ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे हो सकता है। लेकिन जो मैं पढ़ाया हूँ सिंगल प्लेट, मल्टी प्लेट, ऐसा नहीं होगा। इतना वेरी स्मॉल अमाउंट, इतना वेरी लेस अमाउंट तुम एडजस्ट नहीं कर सकते। 10 न्यूटन मीटर टॉर्क से डायरेक्ट 15 या 20 न्यूटन मीटर टॉर्क ट्रांसमिट होगा। You cannot adjust very little amount of torque with comparison with the single plate, multi plate or cone clutch or hydraulic clutch. But in electromagnetical clutch, what happened? You can able to precisely maintain the torque transmission. Fast response. Fast response means as it is work as a magnetical and electrical field, it responds very fast with comparison with the previous or the clutch system. It will work very fastly. Then absence of complicated linkage. Very simple design. Nothing is there, only starter, rotor, armature, field coil, and there is nothing more complicated design. Very simple design, very small place and space it will be required, and also weight is very less. Next is low loss. The losses of energy is very less over here with compared to other clutches, because in other clutches the friction is much more high, number of plates are there, so that's why the losses is much more high. At that time there is not in this clutch there is absence in that of system. So in this system the losses is very low. The disadvantage of electromagnetic clutch is high cost, as it is containing the field coil, starter, armature, rotor, hub, and controlled by electrically and mechanically, and it is adjusted by means of manually, by means of very hybrid systems. So this is otherwise take the much amount of cost, because इसका दाम ज़्यादा है, ये बहुत कम दाम में नहीं मिलेगा। आज it containing electrically and mechanically both systems, semi-automatic system. So it consisting the cost is high, the disadvantage fast is not so much disadvantage that we're not able to overcome it.
depends upon the optimum temperature. Our optimum temperature means, as we know, that is work on the electrical system, also mechanically, but electrically we are the functioning about it. So when the electrical system is there, there is a heat will be generated automatically, just like centrifugal clutch I already discussed. In centrifugal clutch also heat generated, the temperature dependent, the heat generated system. The disadvantage of centrifugal clutch, that is automatic clutch. In semi-automatic, same thing is happened. Disadvantage is the depending upon the optimum temperature and the heat generated takes place over here. Next is risk of overheating, same thing. तो ओवरहीटिंग मतलब मैं जो बोला हूँ, द हीट होगा ज़्यादा के बाद ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसी हिसाब से वो काम करेगा, अगर उससे ज़्यादा हो गया वो काम नहीं करेगा. जैसे सेंट्रीफ्यूगल क्लच में ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाने से वो काम नहीं करता, वो फेल हो जाता है. ओके, के बाद क्या होगा, पीरियडिकली रिक्वायर मेंटेनेंस. पीरियडिकली रिक्वायर मेंटेनेंस मतलब ये कुछ पल के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ पीरियड्स के बाद उसको थोड़ा मेंटेनेंस चाहिए. अगर अदर क्लॉज के हिसाब से बात किया जाए तो उसको पीरियडिकली मेंटेनेंस नहीं चाहिए, उनको थोड़ा ज़्यादा समय के बाद मेंटेनेंस होगा. आज इट इज़ ए वर्क ऑन ए डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड, कॉयल, आर्मेचर, हॉब, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, electrical parts, magnetic field, electrical field generated and windings are there. So for that purposes, periodically it is just able to get maintained. For that purpose, it is a certain disadvantage of this electromagnetic clutches. Where we can able to apply it, application of electromagnetic clutch. electromagnetic clutch जो है ये ध्यान में मत रखना कि ये ज़्यादातर व्हीकल में यूज किया जाता है, नहीं. इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में, जो छोटे छोटे मोटर लगता है. जैसे एक एग्जांपल मैंने वीडियो में देखा, कन्वेयर प्लेट. हमारे जो प्रिंटिंग मशीन है, जो जेरॉक्स मशीन हम कहते हैं, उसमें तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच वहाँ पे है, जो मोशन करता है ना, जो जेरॉक्स होता है वहाँ पे देखना एक चीज़, जो तुम्हारा कैटरेज है, कैटरेज उसके ऊपर जो लाइट होता है ना वो इधर उधर होता है, जो प्रिंट होता है ना, तो वहाँ पे एक मोटर होता है, वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन लाता है और वो लाइट वहाँ पे होता है. वो जो इनिशियल फाइनल होता है जस्ट लाइक कन्वेयर प्लेट, उसको कंट्रोल कौन करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल क्लच करता है, जो कि सर्वो मोटर के साथ कनेक्टेड है. जब तुम पहले ऑन करोगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तब यहाँ पे ऐसे अरेंजमेंट है कि प्रिंटिंग मशीन को जब तुम ऑन कर देते हो तो वो क्या करता है ना, डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल फील्ड कॉइल को ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम देके इलेक्ट्रिकल फील्ड को जनरेट कर देता है. बस काम क्या है, सर्वो मोटर है. जब तुम प्रेस करते हो स्विच प्रिंट करने के लिए, तो तुम सर्वो मोटर को मूवमेंट करने के लिए इंस्ट्रक्ट देते हो. सर्वो मोटर वहां पे घूमता है तो रोटर वहां पे घूमेगा, रोटर घूमेगा तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होके है, क्योंकि तुम ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑन करके वो काम करते हो. तो ऑटोमेटिकली जब सर्वो मोटर घूमेगा तुम इंस्ट्रक्ट देते हो, उसके बाद मैग्नेटिकल फील्ड घूमेगा, आर्मेचर उसके बाद जाके कनेक्टेड हो जाएगा, और जो सर्वो मोटर के साथ जो मशीन है जो प्रिंट करता है आगे पीछे, वो चलता जाएगा. प्रिंटिंग मशीन, कन्वेयर बेल्ट के बाद जो तुम्हारा जितनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री में बेल्ट सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट होता है, मैकेनिकल बेल्ट सिस्टम नहीं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल क्लच में होता है. कुछ व्हीकल है इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिकल क्लच यूज किया जाता है, वो बड़ा व्हीकल और बड़ा टॉर्क ट्रांसमिट नहीं करता. ये सबसे ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट नहीं करता, तो बॉस ट्रक में इसको लगा दिया जाता है. अगर ऐसा करता तो ऐसा नहीं है, ये टॉर्क ट्रांसमिट करता है जितना जरूरी है, सबसे ज़्यादा टॉर्क ही ट्रांसमिट नहीं करता. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच सेमी ऑटोमेटिक है, तो इलेक्ट्रिकली हैंडल करना इजी है. सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो मैकेनिकली कनेक्टेड है सर्वो मोटर्स के साथ, वही वहाँ पे ही इसको अप्लाई किया गया है. तो मेनली जितने सारा इलेक्ट्रिकल विथ मैकेनिकल डिवाइस एंड रोटेटिंग पार्ट एट दैट टाइम और एट दैट एप्लीकेशन, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल क्लच इज जस्ट अप्लाइड ओवर देयर. अभी तक इस क्लास तक सारे ट्रांसमिशन सिस्टम का जो पहला पार्ट है क्लच, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लच, मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, दैट इज सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, कोन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल क्लच, जितनी सारे हाइड्रोलिक क्लच, जितना सारा क्लच सिस्टम था क्लच के अंडर में, ट्रांसमिशन का पहला पार्ट वो कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम. जो पहले मैं बताया था, इंजन को छोड़ के बाकी जो रहा वो ट्रांसमिशन सिस्टम में आता है. तो पहला सिस्टम में जो पार्ट आता है वो क्लच है, के बाद जो आता है वो है गियर बॉक्स,
जो कि क्लॉज से ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अप टू 8 दिस गियर बॉक्स सिस्टम, दिस गियर बॉक्स एंड टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स, यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स है जो कि नेक्स्ट क्लास से शुरुआत होगा। इसको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा वर्किंग प्रिंसिपल के साथ। ये सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम है। अप टू 8 स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच।